Oh, how are you? So it was good, sir, and I'm waiting for your call. Okay. Tell me about yourself, including your family background. Okay, sir. Sir, my name is Vivekanand Vivek. I belong to Jharkhand from Girit district, Okay. and I did my graduation in botany honors from Delhi University, and my schooling was completed from BN Saha DV Public School, Giridih. Sir, sir, I belong to a nuclear family, and my father is a retired government serviceman, and my mother is a housewife. And sir, my strength is I'm optimistic and I am enthusiastic person, hardworking and self-focused person, sir. Sir, my hobbies are playing and watching cricket and cooking Indian food. Okay. Thank you, sir. Why you want to join IB? As you have different, you have done your graduation in botany, right? So Yes, sir. why you want to come this into this field? Sir, as we all know, IB is a very prestigious job in our country, and it maintains our internal peace and security and law and order in our country. And sir, it gives me opportunity to serve our nation. And sir, I think IB have done all our security challenges, and sir, it provide me every day. It provide me a new opportunity to visit a new place, to know known person, and Okay. it also improve my quality, and I use my quality from this organization to serve the nation. Okay. Very good. Can you tell me something about Indian National Congress when it was established, and we can say president at the time of establishment, first president of Indian National Congress? Sir, Indian National Congress was established in 1885, and it is the only organization at that time who represent the voice of all the Indian population in that country in the British era. And Okay. sir, the first president was, uh, president was, sir, I think, sir, I don't recall. I think Banerjee. Sorry, Okay. sir, I forgot Okay. the time. W.C. Banerjee, Ramesh Chandra That, Banerjee. yes, sir. Okay. So who established INC? Sir, INC was established by A.O. Hume. Okay. So can you tell me who is the viceroy at the time of establishment? Sir, I think, no, sir, I didn't recall at that time. At Okay. this time. No problem. Okay, now tell me about something Surat split. Why it was very famous event? Okay, sir. Sir, Surat split basically at that time, sir, basically at that time, 1995, Bengal split was there by Lord Curzon. Okay. And sir, Surat, can I speak? are you talking about Surat split or partition of Sir, Bengal? basically, I can relate that moment why Surat split had been done. Okay, okay. Okay. Continue. Can I speak in Hindi? Yeah, you can. ओके थैंक यू सर सर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे जो सपोर्ट करते मतलब बेसिकली जो हमारे नेशनलिस्ट जो थे हम्म, उनमें से दो आइडियाज डिवाइड हुए थे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब वो एक्शन तो ले रहे थे लेकिन उनका एक्शन बेसिकली मेरे जो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे सर क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनके आइडियाज में डिफरेंस थे और वहां पे जो दो आइडियाज डिफरेंस हुए थे, एक तो हमारा हो गया था नरम दल एंड दूसरा थे गरम दल वाले, जिसमें लाला लाजपत राय वो सब लीडर थे और बाल गंगाधर तिलक जो सब लीडर थे, वो आपके नरम दल वाले में थे। वहां पे क्या हुआ था कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आइडियाज प्रेजेंट कर रहे थे कि हमें उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए था, सूरत वो स्प्लिट अपनी हुई दो कब? कब हुई थी सूरत स्प्लिट? सर 1987 आई थिंक 1906 19 या 1997. नो सर 1907 1997 इज Okay, करंट okay. That's why.
Okay, 1907. So you have connected it with the partition of Bengal. What was the Yes impact of partition, or what was the outcome of partition of Bengal? सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली हमारे जो भी कम्युनल राइट्स को ना उसको उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हो रहे थे क्योंकि और ये एक मेजर कारण था सर कि जो हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे या कम्युनल डिस्टर्बेंस जो हमारा आया था, वो इसके वजह से ही आया था। Okay. और सर उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट चलाने की वजह से ये उतना ज़्यादा ये मतलब हम स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करके इसको बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन Okay. उन सभी कारणों की वजह से ये हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था सर। आइडियाज़ Okay. मैच नहीं हो पा रहे थे। So when was Swadeshi movement started? सर आफ्टर बंगाल स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था ताकि जो भी मतलब ब्रिटिश एरा में जो भी हमारे इंडियन पीपल वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उनको अपना मतलब कि उनको मतलब बॉयकॉट करना था बेसिकली। उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना था, इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना था, ताकि उनके ऊपर कुछ असर हो। Can you tell me who was the president at the time of Swadeshi movement? सर एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट सर 1 मिनट सर। हुँ, दादा भाई नौरोजी। आई एम सॉरी No, सर बट यस it's not right. He सॉरी was Gopal Krishna Gokhale, right? सॉरी यस गोपाल कृष्ण। थैंक Okay. यू सर। And who was at the time of Surat split? सॉरी सर, आई डिडंट Okay, रिकॉल दैट। no problem. Now tell me something about what you have learned so far. सर आफ्टर माय ग्रेजुएशन सर मैंने फिर टीचिंग करना मतलब ट्यूटर के जैसा मैंने मतलब वर्क करना शुरू किया था सर, स्टार्ट किया था फॉर सेल्फ अर्निंग एंड फॉर अपने लिए मैंने वो कि ताकि घर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। सर फिर मैंने दिल्ली में रह करके मैं यहाँ पे एक होम ट्यूटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया था। एंड आफ्टर दैट व्हेन आफ्टर लॉकडाउन व्हेन आई गो टू आवर होम टाउन देन सर फिर वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था सर। Okay. So what did you learn from there after teaching? You gain something, or what kind of experience you have gained? सर अ, सर मैं जब वहाँ पे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो सर सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने ये देखा था कि स्टूडेंट्स में क्या-क्या चीज़ें लैक करती है। जो चीज़ एक स्टूडेंट होने के नाते और जब मैं एक ट्यूटर के जैसे काम किया था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते। उन्हें फिर से पूछना पड़ता है और उन्हें अच्छे से समझाना पड़ता है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड सेकंड पॉइंट सर जब आप अपने से जूनियर्स को किसी को आप पढ़ाते हो, तो सर आपकी जो नॉलेज होती है वो ब्रश अप होती रहती है एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट आपके एक्सपीरियंस में भी वो आता है और आप कहीं और भी इसको यूज़ कर सकते हो। Okay. थर्ड पॉइंट सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो चीज़ जहाँ पे आपने लैग किया था, आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर के वो आप स्टूडेंट्स के ऊपर और एक गुड ट्यूटर होने के नाते आप उसको एक नई-नई आइडियाज़ एंड एट दैट टाइम जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो भी नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके साथ आप उनके साथ आप कोरिलेट कर करके उनको समझा सकते हो और ऐसे करके मैं सर पढ़ाता हूँ। Okay. Suppose a colleague, you are working in IB, right? And सर one of your colleagues comes in tier in front of you. Then what will you do? सर सर मैं उसको मोटिवेट करना चाहूँगा, मैं उसको काउंसलिंग करना चाहूँगा एट दैट टाइम कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? उसके बाद सर मैं उसकी प्रॉब्लम्स देखूँगा एंड प्रॉब्लम्स देखने के बाद फिर मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, अगर कोई जेन्युइन हेल्प अगर मेरे तरफ से हो सके, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहूँगा और इफ उसका प्रॉब्लम्स अगर कोई जेन्युइन हो और कोई अगर ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू अगर उसकी मैं हेल्प कर सकूँ, तो सर मैं वो स्टेप लेना चाहूँगा इफ दे Okay. आर इन प्रॉब्लम तो मैं ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू उसकी हेल्प करवा सकता हूँ। Okay. So have you visited any other places in India, excluding your hometown? Yes, sir. I had visited after my schooling. सर मैं बेंगलोर गया था फॉर एग्जाम्स के लिए एंड आफ्टर दैट मुंबई गया था सर वहाँ पे भी एग्जाम देने के लिए एंड आई एक्सप्लोर नॉर्थ इंडिया अपर नॉर्थ इंडिया सर मैंने हिल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है एज ए बॉटनिस्ट मैंने बहुत सारे प्लांट्स को विजिट किया है और ब्रायोफाइटा सब मैंने सर देखा है So सर ये can सब you tell जगह me why Bangalore is famous?
यस सर। सर Bangalore is famous for its IT hub. Okay. एंड सर वहाँ पे हमारे कंट्री का मेजर जो भी चीजें बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए इंडियन बैंगलोर इज फेमस, और हमारा जो कंट्री है सर वो फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। एंड बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे आकर के स्टैब्लिश करती है, एंड वहाँ से हमारे कंट्री को अर्निंग भी होता है, और एक हमारा एक बहुत ही अच्छा हम अपने सॉफ्ट सॉरी सर, मैं अपने वहाँ पे अपने बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी हमारा वहाँ से सर इनहांस होता है, हमारे Okay. कंट्रीज का टेक्नोलॉजी हम वहाँ से होता Okay. Suppose you are IB officer, right? And है। you get an intel about somewhere at some place in Bangalore there is about to bomb blast, right? At a place is going to happen. Then what will you do? सर इफ आई गेट एनी इंटेल देन सर सबसे पहले तो मैं उस इंटेल को वेरीफाई करूंगा एज ए इंफॉर्मेशन, द इंटेल वाज ए इंफॉर्मेशन। उसके बाद सर मैं उसको वेरीफाई करूंगा, तो फिर वो मेरे लिए एक उसको मैं वेरीफाई करूंगा, एंड आफ्टर दैट मैं सर वहाँ के लोकल पुलिस को कंसल्ट करूंगा। सर Okay. लोकल पुलिस को कंसल्ट करने के बाद मैं उनसे हेल्प लूंगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ होने वाली है, मतलब कुछ भी इंसिडेंट ऐसा होने वाला है जिससे Can you tell लोकल me पीपल। who is the concerned department to which you can transfer this information? सर मैं सबसे पहला ट्रांसफर करूंगा सर जो हेड होगा सर, एज ए स्टेट का जो पुलिस हेड होंगे, जो आई थिंक डीआईजी सर मैं उनसे कंसल्ट करने का कोशिश करूंगा, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड आफ्टर दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे वाले पुलिस स्टेशन के पास उनके पास ट्रांसफर कर देते Okay. हैं, ट्रांसफर। Have you not heard about NIA? यस सर, आई What is हर्ड। the function? Sir, NIA was established after 26/11, and its main function is to control all the incidents और जितने भी हमारे कंट्रीज के अंदर जो भी इंसिडेंट होने वाले होते हैं उनके ऊपर वो एक्शन लेता है। किस जैसे तरह के कि स्टूडेंट कौन किस सर वजह से? सर मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग। सर एनआईए के अंडर ही जो भी एटॉमिक एक्ट के अंदर उनको ये अंडर दे दिया गया था। एंड सर जितने भी हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपका जो भी मतलब हमारे लिए कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उनमें अगर कोई इंसिडेंट्स होता है तो ये भी उनके अंदर है। Okay. बेसिकली एनआईए को बहुत Okay. You get the information regarding bomb blast, right? So couldn't you transfer it to the NIA यस सर, आई कैन। as it is a concerned department, right? Then it will be active with you. Look after the situation, what can be happen or to avoid that kind of activities, right? Okay. यस Now, tell me, do you know about plasma in our body? प्लाज्मा, यस सर। During COVID-19, many people was told to donate their plasma, right? So what is यस plasma? सर प्लाज्मा सर इन if I said ke if your blood is divided into two groups, one is plasma and second one is the RBC and WBC. The major constituent of the blood is plasma, in which it contain major components like protein, some ions, some important ions, some enzymes, some hormones are present. Basically, sir, it protect our body from infection, and sir, its major content is water. Sir, if we consider the plasma is 100%, then 92% of the plasma content is water. Okay.